Good morning to everyone. So this is the sum we will do now in front of your screen. Prepare departmental trading and profit and loss account for 2 departments. So in this sum, there are 2 departments whose trading and profit and loss account we have to prepare. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इससे पहले चैप्टर में भी हमने किया है. फाइनल अकाउंट्स है, अकाउंट्स को फाइनलाइज करना है. बट दिस इज अ बिजनेस वेयर देयर आर डिपार्टमेंट्स. अगर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है तो कैसे ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट रहेगा, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. सो यहाँ पे they say there are 2 departments in this question. There are 2 departments. कौन सा? Share department and doll department. So there is this business who manufacture 2 things, chair and dolls. Doll is a toy set. So 2 things are manufactured, chair as well as dolls. So for the year ended 31st March 2014. So सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है of both the department, chair and doll. So we have to directly given opening stock. क्या है? It is given. Then we have raw material consumed. Raw material consumed means how much material has been used, and it is given adding both doll plus chairs. So doll और chairs दोनों को कंबाइन करके मटेरियल यूज हुआ है 1,80,000. हाउ मच मटेरियल हैज बीन यूज्ड? 1,80,000 का मटेरियल हैज बीन यूज्ड. Then they say stores consumed. How much is the stores which is used is also given in combined, that is 45,000, which includes for both doll as well as chairs. Then we have wages, which is given separately for doll and for chair department. Separately दिया हुआ है. Then we have advertisement expenses, which again is given combined. डॉल के लिए भी कितना यूज होता है और चेयर डिपार्टमेंट के लिए साथ में दिया है हमें तो. लेकिन हम तो 2 कॉलम्स बनाएंगे, 2 डिपार्टमेंट्स सेपरेटली. सो वी विल रिक्वायर दिस इंफॉर्मेशन सेपरेटली and not together. Then we have packing expense, and packing expenses are incurred. In bracket they have given only for dolls. So packing expenses are used only for doll department. Then we have office expense. Office expense दिया है. Then depreciation दिया है for factory equipment and for building. Office expense together it is given, and depreciation also together they have told कि factory equipment का 16,000, building का depreciation is 8,000. Then we have sales given separately. chairs का 4,50,000, dolls का 90,000. chairs का 4,50,000 and doll sales is 90,000. Then we have closing stock. chair का 60,000 and doll का 30,000. This is the closing stock of each department. chair में कितना stock is remaining unsold? 60,000. doll department unsold dolls are 30,000. So given that additional information is given, doll making does not require any equipment. So यहाँ पे फैक्ट्री इक्विपमेंट है, वो सिर्फ चेयर डिपार्टमेंट के लिए यूज होगा. बिकॉज दे से फर्स्ट पॉइंट सेज डॉल बनाते वक्त कोई भी इक्विपमेंट का जरूरत नहीं होता. ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया रहेगा? What is the purpose of giving this information? See, in the depreciation we have on factory equipment. जब डॉल डिपार्टमेंट के लिए कोई इक्विपमेंट यूज ही नहीं होता, so ये डॉल में कि ये जो इक्विपमेंट है ये सिर्फ चेयर डिपार्टमेंट के लिए यूज होता होगा.
तो ये पूरा depreciation on factory equipment should go directly to the chair department because doll department में कोई भी equipment use नहीं होता. Getting my point? They say doll बनाते वक्त while making doll does not require any equipment, and question में they have depreciation on factory equipment. So ये पूरा का पूरा कहाँ यूज होता होगा? चेयर के लिए. तो ये जो वैल्यू रिडक्शन हुआ है फैक्ट्री इक्विपमेंट का, वो चेयर बनाते बनाते वैल्यू रिड्यूस हुआ है. सो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट विल गो ऑन chair department. Then only 1/8 of the building is occupied by doll department. देखो क्वेश्चन में depreciation on building बोला है, एंड पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो डॉल बनाने के पीछे यूज नहीं होता. अगर 8 हिस्सा है, if the building has 8 parts, only one of the part is used by the doll department. You're getting my point? They say 1/8 of the building is occupied by the doll department. Means suppose there are 8 rooms in a building. There are 8 rooms in a building. Only 8 में only 1 room is used by doll department. So can anyone tell me chair department कितना rooms use करता होगा? 7, 8. अगर टोटल 8 हिस्सा है तो 8 में से 1 यूनिट इज यूज्ड बाय द डॉल डिपार्टमेंट, एंड 8 में से 7 यूनिट इज यूज्ड बाय द चेयर डिपार्टमेंट. में 7 डिवाइड बाय 8. यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, देखो 1/8 ऑफ द बिल्डिंग, 1/8 कौन यूज करता है? डॉल. इज ऑक्यूपाइड बाय द डॉल डिपार्टमेंट. गिवन क्लियरली only 1/8 of building is occupied by doll department. So remaining 7/8 कौन यूज करता है? तो ये जो depreciation on building है, ये भी वैसे ही डिवाइड होगा 1/8, 7/8. So ये 8,000 का 1/8 जो है वो डॉल डिपार्टमेंट में जाएगा, एंड 7/8 जो है वो चेयर डिपार्टमेंट में जाएगा. Then divide office expenses in the ratio of 5:1 between chair and doll departments respectively. जो ये office expense है, ये दोनों जगह यूज हुआ है. रेशियो है 5:1, मतलब 5 हिस्सा chair डिपार्टमेंट में, 1 हिस्सा डॉल डिपार्टमेंट में ऑफिस एक्सपेंस डिवाइड होगा. तो 5 + 1 is 6. टोटल देयर आर 6 पार्ट्स, जिसमें से 5 पार्ट ऑफ एक्सपेंस इज शेयर्ड बाय द चेयर. क्योंकि दिया देखो डिवाइड ऑफिस एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ 5:1 बिटवीन चेयर एंड डॉल. 5:1 एंड पहले चेयर का नाम दिया है रेस्पेक्टिवली, मतलब चेयर में 5 हिस्सा, डॉल में 1 हिस्सा. तो अगर टोटल 6 पार्ट्स है तो 5 पार्ट्स विल बी यूज्ड बाय द चेयर. ऑफिस एक्सपेंस कौन कितना यूज होता है? चेयर में 5 एंड डॉल में 1. तो 5 + 1 is 6. 5/6, 1/6. Then we have value of raw material used by doll departments is 10,000. तो tell me total raw material consumed कितना है? Total raw material consumed कितना है? See, raw material consumed doll plus chair 1,80,000. Total raw material consumed. What do you mean by raw material consumed? Raw material consumed means raw material used. Raw material consumed means raw material used. कितना raw material use हुआ है? Total raw material use हुआ है 1,80,000, जिसमें से, और वो 1,80,000 कैसा? डॉल प्लस चेयर दोनों को मिला के, जिसमें से क्वेश्चन में दिया है रॉ मटेरियल यूज बाय डॉल डिपार्टमेंट इज 10,000. तो टोटल रॉ मटेरियल, टोटल 1,80,000 में डॉल डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलो यूज बोलो एक ही बात है. कंज्यूम को ही हम यूज भी बोलते हैं. सो इज 10,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम, और यू से रॉ मटेरियल यूज्ड बाय डॉल इज 10,000. सो कैन एनीवन टेल मी चेयर में कितना यूज हुआ होगा? एग्जैक्टली 1,80,000
minus 10,000 means 1,70,000 of the raw material is used by the chair department. क्योंकि दो ही डिपार्टमेंट है, चेयर और डॉल, दो ही डिपार्टमेंट है, करेक्ट, और दो ही डिपार्टमेंट है, तो जिसमें से एक डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल दिया है तो बचा हुआ विल बी द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द अदर डिपार्टमेंट. यस. Then divide stores consumed in the basis of raw material used. तो जो stores consumed है 45,000, ये raw material use का जो भी रेशो रहेगा हम डॉल डिपार्टमेंट चेयर डिपार्टमेंट में जैसे भी डिवाइड करेंगे वही रेशो को नंबर को कम करेंगे. नहीं कम करना तो मत करो, वी हैव कैलकुलेटर्स. सो जो भी रेशो है दोनों का वही अमाउंट में हम वही सेम रेशो में स्टोर्स कंज्यूम को भी डिवाइड करेंगे. 45,000 also we will divide in the same ratio. Then we have advertisement expense allocated appropriately. बताओ मुझे एडवर्टाइजमेंट कब होता है? एडवर्टाइजमेंट किससे रिलेटेड होता है? Why do we do the advertisement? For sales purpose. तो एडवर्टाइजमेंट टू बी एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली बोला है. अप्रोप्रिएटली मतलब जैसे होना चाहिए वैसे डिवाइड करो. तो एडवर्टाइजमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सेल्स. सो सेल्स दोनों डिपार्टमेंट का अलग से दिया है, तो वैसे ही हम ये एडवर्टाइजमेंट को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ डॉल डिपार्टमेंट एंड चेयर डिपार्टमेंट. हम अकॉर्डिंगली वी विल डिवाइड द एडवर्टाइजमेंट. ओके. So we can start the sum. So departmental, how the format will be? Departmental trading and profit and loss account for year ended. What is it given? 31st March 2014. 31st March 2014 is given. वैसे ही लिखेंगे. और सबसे पहले क्या दिया है? And trading and P&L account दोनों we have to prepare. तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इज गिवन. सो चेयर का एंड डॉल का 75,000, 25,000 सेपरेटली इट इज गिवन. सो गो टू द ट्रेडिंग P&L अकाउंट, राइट डाउन टू ओपनिंग स्टॉक, राइट डाउन टू ओपनिंग स्टॉक. हाउ मच इट इज? दिस इज गिवन, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. 75,000 एंड 25,000. इज इट करेक्ट? चेयर का 75,000, डॉल का 25,000. डन. सो नाउ व्हाट वी विल डू? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. यहाँ पे परचेसेस नहीं दिया, डायरेक्टली दे हैव गिवन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. सेम ओनली, बोथ थिंग्स आर सेम ओनली. मीन्स देखो कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर raw materials. Opening stock is there and raw material used in the year that we have to divide. Correct? So यहाँ पे normally raw material consumed में जब हम final accounts में बनाते थे तो opening stock भी included रहता था, but यहाँ पे कुछ दिया नहीं है वैसे. and इसका रेशियो भी दिया, चेयर में कितना आना चाहिए and डॉल में कितना आना चाहिए. तो in this situation we understand कि ऊपर का ओपनिंग स्टॉक उस रॉ मटेरियल कंज्यूम में यूज नहीं किया. इंक्लूड किया होता था इन क्वेश्चन they would have given, because then some of you may have this question in your mind कि हम जब लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स में रॉ मटेरियल कंज्यूम करते थे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक सब करते थे. बट यहाँ पे ये रॉ मटेरियल कंज्यूम इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू परचेसेस, कि कितना रॉ मटेरियल हमने बाय किया है, परचेस किया है, बिकॉज सब इंफॉर्मेशन अलग से दिया है. तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहता अगर इंक्लूडेड होता तो. So and every सबका bifurcation also is given. So that accordingly we will do. They have kept it very simple. So यहाँ पे क्या करेंगे? Raw material is nothing. Don't get confused. It is your purchase. So उसके लिए कुछ रेशियो इंफॉर्मेशन दिया है ना. डॉल प्लस चेयर 1,80,000.
तो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दिया है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय डॉल डिपार्टमेंट इज 10,000. लेट अस गो टू द वर्किंग नोट एंड डू इट प्रॉपरली. सो वर्किंग नोट में जाके रॉ मटेरियल consumed. We have two department, share. I'm not writing department, share and doll. Total कितना है? Total is 1,80,000. This is given in question. And one more information is given in question, that raw material used by doll is 10,000. That is also given. So raw material of doll we know is 10,000. So chair का कितना होगा? टोटल 1,80,000 में minus 10,000 किया तो we get how much is chair का? 1,70,000. Okay, doll का is 10,000 and chair का is 1,70,000. Okay, so let us write to raw material. To raw material, or you may say purchase, used. This is also actually given only. या तो हम लिख सकते हैं ऐसा गिवन लिखो या तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, however you want to do. चेयर का 1,70,000, डॉल का दिस वाज गिवन, पार्टली दिया हुआ था, डॉल का दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था, हमने फाइंड किया चेयर का माइनस करके. तो दो ही डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट का जैसे कि 10,000 मटेरियल यूज होता है तो बचा हुआ जो रहेगा वो दूसरे डिपार्टमेंट का रहेगा. इफ यू से देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन बीकॉम एंड उसमें से 10 स्टूडेंट्स बिलोंग टू SY बीकॉम एंड वी हैव ओनली 2 departments coming now, I mean 2 sections, FY and SY, and total बीकॉम में 20 स्टूडेंट्स एंड दिया है कि SY बीकॉम 10 स्टूडेंट्स. तो बचा हुआ जो भी रहेगा इट विल बी ऑफ FY बीकॉम. यहाँ पे भी टोटल गिवन 1,80,000, डॉल डिपार्टमेंट का गिवन 10,000, तो जो बचा होगा वो चेयर ही होगा बिकॉज ओनली 2 डिपार्टमेंट्स आर देयर. गेटिंग इट? सो नाउ नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? नेक्स्ट दे हैव गिवन stores consumed. Stores consumed 45,000. Stores consumed is how much? 45,000. So stores consumed, क्या बोला information? Divide store consumed in the basis of raw material used. Raw material जितना use हुआ है accordingly you find the stores consumed. So second working note is stores consumed. 45,000 एंड यहाँ पे दो चीज है, चेयर एंड डॉल. क्या रेशो है? किसका रेशो निकालने बोला है? रॉ मटेरियल कंज्यूम का रेशो डिवाइड बाय रेशो ऑफ स्टोर, सॉरी रेशो ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड, ये रेशो से डिवाइड करना है. सो यहाँ पे ये रेशो क्या है? चेयर का इतना एंड डॉल का इतना. कितना जीरो? इसको ऐसे ही रखना है तो 1,70,000 डिवाइड बाय 1,80,000 ऐसे भी रेशो निकाल सकते हैं. बट इफ यू वांट टू रिड्यूस द जीरोस, कितना जीरो कॉमन है? 4 zeros आई कैन सी इज कॉमन. 4 या 3 जीरो कॉमन है ना, तो 1,70,000 और 10 ना, करेक्ट है ये? या 4 zeros कॉमन है और 17 और 1 बचते हैं. 4 zeros कॉमन है, यहाँ पे 4, 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 4, तो हमारे पास बचा 17:1. तो 17 + 1 is 18. 17/18 1/18. अगर कम नहीं करना था तो सेम नंबर भी रख सकते थे. सो यू नो हाउ टू डू द डिविजन. तो कैसे करेंगे? स्टोर्स कंज्यूम विल कम हियर टू स्टोर्स. सो कैसे करना है?
डू यू वांट मी टू शो हियर दोनों डिपार्टमेंट का? चेयर्स का 45,000 into 17 डिवाइड बाय 18 एंड डॉल का 45,000 into 1 divided by 18. How much you are getting? 42,500 and 2,500. Yes. So we will write here, this is working note 2. We will write here 42,500 and 2,500. Then we have wages. Wages अलग से दिया है 15,000 डॉल का, शेयर का 30,000. So wages, where do we write? Wages comes in the trading account. So wages, this is given. This information is given. So how much it is? How much it is? 30,000 in the chairs and 15,000 in the dolls. Then what we have? Then we have advertisement. Advertisement किससे related होता है? Advertisement is related to sales. So 7,500 के लिए हमें sales ratio चाहिए रहेगा. Sales क्या है? 4,50,000 and 90,000. How much is sales? Chair का 4,50,000 and doll का 90. So इसका ratio निकालते हैं. एडवर्टाइजमेंट को डिवाइड करने के लिए लेट अस फाइंड द सेल्स रेशो. वर्किंग नोट 3 में व्हाट वी विल फाइंड आउट? सेल्स रेशो. तो चेयर डिपार्टमेंट का सेल और डॉल डिपार्टमेंट का सेल है 4,50,000 एंड 90,000. इसमें कितना जीरोस कॉमन है? Tell me how many zeros common here? So we can see how many zeros common. 4 zeros 45 is to 9. तो 9 के टेबल में ही 45 और 9 दोनों आते हैं. 5s are and 1s are. 5s are and 1s are. So यही रेशो में एडवर्टाइजमेंट को डिवाइड करो. How much is to advertisement? How much is advertisement? Advertisement is 7,500. So 7,500 into 5 divided by 6. 5 plus 1 is 6. So 7,500 कितना आता है? 6250 आता है and 1250. So एडवर्टाइजमेंट के बाद या तो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली, वर्किंग नोट नहीं लिखना है. वी विल राइट हियर सेल्स रेशो. सेल्स रेशो में डिवाइड हुआ. देन वी हैव सेल्स का हमने क्या किया? दोनों डिपार्टमेंट का सेल को कंपेयर करके उसको छोटा करके रेशो फिर बना दिया. अगर कट नहीं करना था तो वो भी सेम नंबर से भी डिवाइड करके हम निकाल सकते थे. Next we have packing expensive doll में 3,000. Packing expenses there only in doll. So we will write 2 packing expense only in doll. तो ये किस में आएगा? सिर्फ डॉल में है 3,000. Then what we have? ऑफिस एक्सपेंस का रेशियो दिया है क्वेश्चन में 24,000 डिवाइड बाय 5:1 रेशियो. क्वेश्चन में दे हैव टोल्ड डिवाइड ऑफिस एक्सपेंस इन द रेशियो 5:1. सो चेयर एंड डॉल. सो हियर वी विल राइट 2 ऑफिस एक्सपेंसेस. रेशियो दिया है दिस गिवन 5:1. नहीं लिखना है तो गिवन भी लिख सकते हैं. 24,000 into 5 divided by 6. 24,000 into 1 divided by 6. How much we are getting here? 20,000 and 4,000.
Then we have depreciation, factory equipment. डॉल डिपार्टमेंट के बारे में क्या दिया? डस नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट. ये जो डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट है ये पूरा का पूरा चेयर डिपार्टमेंट में जाएगा, बिकॉज डॉल डिपार्टमेंट डस नॉट यूज एनी इक्विपमेंट. तो ये 16,000 टू डेप्रिसिएशन क्या है? ये फैक्ट्री इक्विपमेंट 16,000. ये दिस इज अगेन गिवन. किधर आएगा? सिर्फ इधर आएगा. And again about the building, there is an information. Building 8,000 depreciation, and point number B says only 1/8 of the building is occupied by doll department. मतलब टोटल डेप्रिसिएशन 8,000 में डॉल डिपार्टमेंट तो 8 में से एक हिस्सा ही यूज करता है. सो ये जो है बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का क्या है? 8 में से 1 part is taken by doll and 7 part is taken by chair. टोटल अगर 8 हिस्सा है तो 8 में से एक हिस्सा डॉल डिपार्टमेंट है, 7 हिस्सा चेयर डिपार्टमेंट. तो 7:1. पहले चेयर है ना, चेयर को 7 हिस्सा जाता है और डॉल को 1. तो दिस इज द रेशियो. तो करो 8,000 into 7/8, you will get 7,000, and 8,000 into 1/8, we will get 1,000. Then we have sales, closing stock, दोनों दिया है. सेल्स 4,50,000, 90,000. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स गिवन 4,50,000 and 90,000. And then one more thing, closing stock 60 and 30. Closing stock is how much? By closing stock given 60,000 and 30,000. Now we have everything is done. देखो सब हमने डाल दिया, पोस्टिंग कर दिया, डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंट वाइज. अभी इसको बंद करना है. हम क्या करेंगे? पहले क्रेडिट साइड का टोटल निकालते हैं. जनरली क्रेडिट साइड इज हैवी. क्रेडिट हैवी मींस इनकम, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इन ट्रेडिंग अकाउंट. So 4,50,000 plus 60 is equal to 5,10,000. 90 plus 30, 1,20,000. इधर देखो 75,000, 1,70,000 और 30,000. ये तीनों को ऐड करके कभी भी 5,10,000 के ऊपर नहीं आ सकता. और यहाँ पे भी 25,000, 10,000 एंड 15,000. ये भी 1,20,000 ही हैवी है. तो यहाँ पे भी हम यही टोटल डालेंगे, बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड में भी लिखेंगे वही वैल्यू, और डेबिट साइड का जो भी अमाउंट है उससे माइनस करेंगे. तो हमें मिलता है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. How much it is? Minus करो. 5,10,000 minus 75,000 minus 1,70,000 minus 30. Yes, you are getting 2,35,000. Same way 1,20,000 से 25,000, 10,000 and 15,000 minus करो. You get 70,000. So यहाँ पे आ जाएंगे by gross profit brought down. How much it is? 2,35,000 and 70,000. यहाँ पे भी आई सपोज ये अमाउंट देख के लग रहा है कि यही ज्यादा है. This is only credit is heavy. See the debit side amounts are so small.
तो ऑब्वियसली वी कैन मेक आउट दैट विच इज हैवी, क्रेडिट इज हैवी, तो जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। सो माइनस करो 2,35,000 में से 42,500, 6250, 20,000, 16,000 and 7,000 पूरा माइनस करो। How much you get? Do you get 1,43,250? Do you get 1,43,250? Yes, correct. Then 70,000 में 2,500, 1,250, 3,000, 4,000, 1,000 माइनस किया, we get how much? We get 58,250. 58,250 minus करके we get 58,250. With this our solution is done. We got the profit, net profit. Finally ये सब हमें देखो दोनों डिपार्टमेंट का अलग से प्रॉफिट समझा कि चेयर डिपार्टमेंट को कितना इंडिविजुअली प्रॉफिट हो रहा है और डॉल डिपार्टमेंट को कितना इंडिविजुअली प्रॉफिट हो रहा है। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट पता चला, दैट इज व्हाई वी प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच आर द एक्सपेंसेस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, हाउ मच इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, कि हम डिसीजन ले सके कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा चाहिए तो हमें बंद करना चाहिए, किसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किसमें कम, ये सब देख के हमें आइडिया आता है। So by this way, this sum is done. Thank you very much, everyone.